We begin a new week this week. God can still give you something good, something marvelous, a breakthrough, a healing, a deliverance, a new blessing, a new door open right in this week in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. वचन कहता है, the Bible says he is the glory and the lifter of our head. बाइबल कहती है परमेश्वर वो महिमा और हमारे सिर को ऊंचा करने वाला परमेश्वर. He is your glory. He is the one who lifts you up. वही जो आपका महिमा है, वही जो आपको ऊंचा उठाता है. We give you glory, Jesus. प्रभु हम आपको प्रभु जी महिमा देते हैं. The one who is seated on the throne. जो सिंहासन पे विराजमान है. Thank you, Jesus. Come on, come on. आराधना कीजिए. आराधना सिर्फ म्यूजिक नहीं है. Worship is not just singing couple of songs and just clapping our hand. Worship is much more than that. If you cannot worship once the music stops, that is not worship. आराधना सिर्फ गीत नहीं है कि जब गीत बजे तब हम आराधना करें, लेकिन आराधना गीतों से भी बढ़कर है. आराधना वो आराधना नहीं जब म्यूजिक बंद हो जाता है आप भी बंद हो जाते हैं, वो सच्ची आराधना नहीं है. Monday to Saturday, where there is no music, where you cannot even sing a song, but still you just close your eyes at times and you call him Jesus, and he comes into your situation and you feel the presence of God, the glory of God envelops you. That is also a part of a worship. जब आप सोमवार से लेकर शनिवार तक किसी प्रकार के म्यूजिक आपके साथ नहीं रहता, लेकिन आप परमेश्वर को उपस्थिति में यीशु को पुकारते हो और प्रभु यीशु मसीह आके आपको अपनी महिमा से भरता है और अपनी महिमा से आपको लिपट देता है, वही सच्ची आराधना है. You worship God through your action, your deeds. आप प्रभु की आराधना अपने कामों के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा करते हो. The words that you speak, जिन वचनों को आप बोलते हो, the thought that runs in your mind, जो विचारें आपके मन में चलती हैं, that you give the very best to God, that is also part of worship. जहाँ पे आप सबसे उत्तम आप परमेश्वर के लिए देते हो, वही भी आराधना का एक भाग है. Lord, speak to us this morning. प्रभु आज की सुबह हमसे बोलिए और बातें कीजिए. We need one word that can bring something new to those who have no hope. प्रभु आपका एक वचन प्रभु जी उनके लिए जो प्रभु अपनी आशा को खो चुके हैं, प्रभु उनके लिए बड़ी बात हो जाएगी. Lord, we believe your word is the truth. प्रभु हम विश्वास करते परमेश्वर आपका वचन ही सत्य है. In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं. Amen and amen. You may be seated in the presence of God. आप प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं. What a great week we had in our church. बीते सप्ताह बहुत ही आशीषमय सप्ताह हमारे कलीसिया में रहा. And those who have come offline, we welcome you to the presence of God. जो ऑफलाइन आए हैं आपको हम यीशु के नाम से स्वागत करते हैं. And if you are joining us online, let us know from where you are watching us. और यदि आप ऑनलाइन जुड़े हो और हम जानना चाहते हैं कि आप कहां से जुड़ते हो. And if there is any prayer request, you can always type and send the prayer request that we would be able to pray for you. यदि किसी प्रकार की प्रार्थना की निवेदन है तो आप मैसेज के द्वारा आप हमें दे सकते हैं ताकि हम आपको उत्तर दे पाएं. There were hundreds of people from the nearby village walked into our church for our 7th day of prayer and also our church anniversary. और हमारे गांव से 100 से भी ज्यादा लोग जामनगर के आसपास के गांव से आए 7 दिन की प्रार्थना में, और उस दिन चर्च का एनिवर्सरी भी था. And some of them do not have a smartphone where they can connect with us for the online service. और जो गांव में रहते हैं उनके पास अच्छा मोबाइल नहीं है जहां पे वो घर पे बैठ के जुड़ सके. But they, bracing all this biting cold, they could walk into the presence of God Sunday after Sunday. And I thank God for people who have such a commitment to the presence of God. लेकिन हम धन्यवाद देते हैं उन सारे गांव के परिवारों के लिए, प्रभु ने उनको मदद किया कि वो इस कड़ाके की ठंड में भी वो कलीसिया में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करते हैं. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए. I'm not going to be too long, but I have titled my message with this title, and I pray as you listen this word of God, jot down the notes. It will really encourage you. और जिस विषय को मैंने चुना हूं उस विषय को आप लिख लीजिए अपनी नोटबुक में. Stop hiding and start living. आप छुपना बंद कीजिए और जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए. Often we make
self imposed limitation. और कई बार हम अपने आप को बहुत ही तुच्छ और नादान समझने लगते हैं, अपने आप को कम समझने लगते हैं, We fix our own limitation और हम अपनी सीमा को बना लेते हैं and we just want to be comfortable within that limit, that boundary that we set for ourselves. और हम खुद उस सीमाना को जो हम बनाते हैं उसी सीमाना के अंदर सिमट के रह जाते हैं। At times, we don't want to break that barrier and experience the full potential that God has planned before the foundations of the earth. और कई बार हम उस सीमाना जो हम बांध के रखते हैं उसमें से हम नहीं निकलना चाहते, हम वहीं तक सीमित रहना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने आदि से ही आपके जीवन के बारे में योजना को रखा है, उस योजना को आप चूक जाते हो पाने के लिए। God has got limitless resources in His kingdom. और परमेश्वर के राज्य में जो स्रोत की कमी बहुतायत से है, He does not run short of anything that He cannot help you. परमेश्वर के राज्य में स्रोत जो है उसकी कमी नहीं है, बहुतायत से परमेश्वर के पास स्रोतें हैं। God does not make any Xerox copies. Everything that He makes and does, it's always original. जब परमेश्वर जिन बातों को करता है परमेश्वर उसका नकली नहीं करता, लेकिन वो ओरिजिनल रहता, असली रहता है। Anytime we tell the Lord, Lord, make me like Him, we are limiting God. और कई बार हम कहते हैं प्रभु मुझे उनके जैसा बनाइए, तब हम परमेश्वर को हम सीमित करते हैं। It's an insult to God's power. ये परमेश्वर को हम सम्मान नहीं करते इन बातों के द्वारा। And I pray, if you are watching us online, those who are here offline, God has got a plan for you and He wants you to experience the full potential. और परमेश्वर जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या फिर जो यहाँ ऑफलाइन है, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी योजनाओं को रखा है और परमेश्वर आपके जीवन में उन योजनाओं को, उन योग्यताओं को प्रकट करना चाहता है। It is time to stop giving excuses. ये समय है कि बहाना बनाना बंद करे, बहाना बंद करना, and start living for the Lord. और शुरू करे प्रभु के लिए जीवन जीने के लिए। You know, last year in the month of February, if you've been following the messages preached in our church, one of the messages that I preached, obstacles or opportunities in our life. और 20-23 साल 2020 में फरवरी के महीना में जिन संदेशों को हमने सुन रहे थे, उन संदेशों में एक संदेश पासवान ने कहा कि हमारे जीवन की रुकावटें हमारे जीवन के लिए एक सुअवसर है, एक मौका है। Anytime that you face an impossible situation, जब कभी भी आप आपके जीवन में असंभव परिस्थिति का सामना करते हो, that is the best moment God works. और वही जो सबसे सही समय रहता है जहाँ पे परमेश्वर कार्य करते हैं। To the people of God, you would never ever have a conducive environment where you can thrive. God puts us in the fire and makes people know that I am with Shadrach, Meshach, Abednego. अब परमेश्वर अपने लोगों को जहां कहीं भी रखता है, हो सकता है कि वहां की परिस्थिति बिल्कुल अलग हो, लेकिन जब परमेश्वर जब आपके साथ में रहता है तो परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल के लेके आएगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को निकाला आग के बीच में. And Daniel was in the midst of the lion. और दानियल सिंह के मांद में था, And God shut the mouth. और परमेश्वर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। The disciples went through a stormy weather and Jesus walked into the situation. और चेले जब नाव में जा रहे थे, आंधी और तूफान से घिरे हुए थे, प्रभु ने वहां पे जाकर उन्हें सहायता की। To the Israelites, the Pharaoh's army, they were so close chasing them. An impossible situation ahead of them, the Red Sea, but God performed a miracle. इजराइलियों के बारे जब हम देखे, जहां पे फिरौन की सेना उनके पीछे पीछे पड़ी हुई थी, और जब इजरायली जा रहे थे उनके सामने लाल समुद्र उनके सामने रुकावट के समान खड़ी हो गए, तब परमेश्वर ने उस लाल समुद्र में मार्ग निकाला उनके So लिए। to come back to the point, you and I will never have everything going on our favor. और आपको और मुझको इस बात को जानना है, हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो सारी चीजें हमारी सुविधा के लिए, हमारी भलाई के लिए नहीं होने वाली। If you are waiting for everything, all the problem to be solved, everybody to support you, everybody to help you, everybody to be happy, clappy, hallelujah, praise the Lord, nothing is going to happen. यदि आप अपेक्षा करते You'll keep हो waiting lifelong.
यदि आप अपेक्षा करते हो कि लोग आपको प्रोत्साहन देंगे, लोग आपके साथ में खड़े रहेंगे, लोग आपके लिए ताली बजाएंगे, तो याद रखें ऐसा नहीं होने वाला। Especially young people, listen to this truth this morning. और विशेष करके जवान लोग इस सच्चाई को आप सुन लीजिए। Listen this scripture from the book of Proverbs, chapter 22, verse number 13. और नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, The sluggard, the lazy man says, there is a lion outside. If I go out, I will be killed. ऐसा कहता है, आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। Read it in Hindi. आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा, मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। One more translation says, someone who does not want to work always gives excuse. और दूसरे अनुवाद में इस प्रकार से कहा गया है, जो व्यक्ति आलसी है, कुछ नहीं करना चाहता है, वो कहता है। Here is a person in a comfortable situation. यहाँ पे जो व्यक्ति है एक आरामदायक जगह पे है, And he does not want to get out of his comfort zone. और वो उस आराम की जगह से बाहर आना नहीं चाहता। And he gives excuse for not doing what he is supposed to do. और वो बहाना मारता है जिन काम को उसको करना है उसे ना करते हुए। He is giving and he is blaming the circumstances are not supporting him. और ये व्यक्ति आलसी बनकर परिस्थिति को दोष देता है कि परिस्थिति की वजह से मैं आगे नहीं जा सकता। And he prefers to stay in the same place. और उसको यही पसंद है कि उसी जगह पे स्थिर रहे। And he says, if I try to make any move or do anything, I will be killed. और वो कहता है यदि मैं यहां से मैं बाहर निकलूं तो मैं मारा जाऊंगा, घात किया जाऊंगा। Because there is a lion outside. क्योंकि गली में तो सिंह है। But there was no lion outside. There was no problem outside. लेकिन बाहर तो सिंह नहीं था, बाहर तो समस्या नहीं थी। It was an imaginary problem. और ये जो है उनकी काल्पनिक बातें थी, समस्या थी। He was trying to say, I'm happy with where I am. वो ये कहना चाहता है कि जहां कहीं भी हूं मैं ठीक हूं, बस मैं खुश हूं। I don't want to try anything more. मैं नया कुछ भी अभ्यास करना नहीं चाहता, प्रयास नहीं करना चाहता। 2020 तक मैं इधर ही था. I'm happy with this one. 2020 तक यहीं पे था और मैं खुश हूं। What's the point of believing? What's the point of praying? What's the point of going to church? What's the point of fasting? I just want to be in my comfort zone. वो कहता है ये है कि मैं इसी जगह पे मैं तो खुश हूं, तो फिर प्रार्थना करने की जरूरत क्या है, वचन पढ़ने की जरूरत क्या है, कलीसिया में जाने की जरूरत क्या है, उपवास करने की जरूरत क्या है। I don't know how many of you are in the same place for years together and right now you are afraid to venture out anything. आप में से कितने लोग सचमुच में सालों से इसी प्रकार की परिस्थिति में आप बैठे हुए हो और आप आगे बढ़ना नहीं चाहते। And created an imaginary problem around you. और आपने अपने आप में काल्पनिक एक घर बना लिया है, काल्पनिक एक वातावरण को बना लिया है आपने। And you start giving excuses and justify for not doing anything. And you say, there is corona outside. और आप जिस काम को करना है उसे नहीं करते हुए आप इस बात को कहते हो कि बाहर तो कोरोना है, नहीं जा सकता। How many of us started giving excuses now? हमारे लिए एक बहाना तो अभी मिल गया. We have got one excuse for anything and everything. और अभी तो एक बहाना सबको मिल गया, सारी बातों के लिए वही बहाना बना देते हैं। Don't take me wrong. I'm not saying you need to go out and get COVID-19. और हमको गलत मत समझिए, हम ये नहीं कहते आप बाहर जाइए और आप भी उस महामारी का शिकार हो, ऐसा हम नहीं चाहते। I want you all to be safe. हम चाहते कि आप सुरक्षित रहे जहां कहीं भी हैं। But that cannot be an excuse for our failure, defeat, crisis, pain and suffering and staying in the same place. लेकिन आप एक ही जगह पे स्थिर रहना आपके जीवन के लिए असफलता, आपके जीवन के लिए रुकावट, आपके जीवन में बढ़ोतरी न होने का कारण न होने पाए। Many people
believe the lie of the enemy. और कई सारे लोग शत्रु की झूठी बातों के ऊपर में आंख बंद करके विश्वास कर लेते They हैं don't want to break free from the lies spoken over their और life. जो कुछ झूठ उनको कहा गया है उन सारी झूठ की बातों से बाहर आना नहीं चाहते For years together, we have been living in failure, defeat, self-condemnation. और सालों से उसी असफलताओं से उसी परिस्थिति में और उसी प्रकार की निंदा की बातों में दोष की बातों में पड़े हुए हैं Because there is a lion outside. क्योंकि बाहर तो सिंह होगा There is an impossible situation. बाहर तो असंभव परिस्थिति होंगी There is something that is going to kill my और life. बाहर तो कुछ ऐसा होगा जो मुझको घात कर सकता The है lazy man says, there is lion outside, I cannot go outside. आलसी व्यक्ति ही कहता है बाहर तो सिंह है और वो मुझे घात कर सकता है बाहर But जाऊं my तो Bible says in Philippians chapter 4 verse number 13, I can do all things through Christ who gives me strength. लेकिन फिलिप्पी की किताब 4 अध्याय उसका 13 वचन में मेरा बाइबल कहता है कि जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं There are 365 days in a year, 365 days of opportunities, my friend. और साल में 365 दिन रहते हैं और 365 दिन साल के आपके और मेरे जीवन में मौकों को देता है Hallelujah. बचपन में हम खेलते थे, कितने लोग वो खेला पता नहीं है, हमारे घर में तो बहुत सारे बच्चे लोग, अभी आएगा टैक्सी आएगा, टैक्सी आने से मेरे लिए एक नंबर, दो सेकंड टैक्सी सेकंड, थर्ड टैक्सी थर्ड, एंड somebody will say अभी बस आएगा, कितने लोग खेला? आप लोग खेला ही नहीं है, बेकार आपका जीवन तो We used to count. Yellow गाड़ी आएगा. If you are looking for yellow गाड़ी will come. यदि येलो गाड़ी का इंतजार करते हैं पीला गाड़ी तो पीला गाड़ी आएगा If you are waiting for black bus, it will black color का गाड़ी यदि आएगा. काली बस का इंतजार करते काली बस आ जाएंगी What I want to say is, क्या कहना चाहते हैं what you are trying to focus in the year 2021. 2021 में किस बातों की ओर आप अपना ध्यान लगाना चाहते हो Let nothing stop you from what the Lord has asked you to do. आपके जीवन में जो प्रभु ने पूछा करने के लिए उस बात को करने के लिए कोई भी चीज रुकावट ना डाले पाए Let's just not make a self-imposed isolation. हम अपने आप को दर्दनीय या फिर निंदनीय या फिर अपने आप को छोटा करके सीमित करके ना रखे उसके अंदर ही बैठ के बाहर बहाना ही मत देना. There is much more God wants to do in the year 2021. Nothing can stop what God wants to do through us. Only if you are ready to believe what this book says. और 2021 परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करने के लिए प्रभु तैयार है लेकिन प्रभु तभी आपके जीवन में करेगा जब आप बाइबल के वचनों के अनुसार चलते हो The Bible says, बाइबल कहती है the one who is in you is greater than the one who is in the world. बाइबल कहती है जो हम में है वो इस संसार में उससे बढ़कर है Hallelujah. बाहर की दुनिया की प्रॉब्लम बड़ा नहीं है. My God is much bigger than anything. बाहर की जो समस्या बड़ी नहीं लेकिन मेरे अंदर जो परमेश्वर है वो परमेश्वर बड़ा है ये आलसी क्या कहता है मालूम है? There is a lion outside. बाहर तो सिंह खड़ा है But my God is a Lion of Judah, much bigger than all these problems outside. लेकिन मेरा प्रभु तो यहूदा का शेर है सिंह है उससे भी बड़ा है. He is much bigger than the outside problem. वो बाहर की समस्या से बढ़कर है मेरा प्रभु You know, the Gospel of Mark, chapter 5, the first 20 verses. अब मरकुस का सुसमाचार 5 अध्याय पहला जो 5 वचन There was a man possessed with legions of spirit. और एक व्यक्ति था जो दुष्ट आत्माओं से पीड़ित था 6,000 demon. Legion in the Roman army is a squadron with 6,000 soldiers. Refers to legion means he was possessed with 6,000 demons. रोमी के समय में साम्राज्य के समय में 6,000 जो सैनिक हैं उसी प्रकार से 6,000 दुष्ट आत्माओं से व्यक्ति पीड़ित था None could help him. और कोई उसे मदद नहीं कर He पाया was hurting himself. और वो अपने आप को चोट पहुंचा रहा था He would attack anybody who would cross by him. और जो कोई आमने से जाता था उसको आक्रमण कर देता He था was isolated in the graveyard. और वो किसी कब्रिस्तान में पड़ा हुआ था The Bible says he was not dressed and he was chained.
और बाइबल ऐसा कहती है कि उसके कपड़े उसने नहीं पहने थे और उसको जंजीरों से बांधा गया था। But what does the Bible say in verse number 15? लेकिन जब 15 वचन जब पढ़ते हैं मार्कुस सुसमाचार 5 अध्याय क्या कहता है? When he came to Jesus, और जब वो व्यक्ति यीशु के पास आया he was set free. और उसको छुटकारा मिली। 6,000 demons could not stop him. और 6,000 दुष्ट आत्माएं ने उस व्यक्ति को रोक नहीं पाई। He sat at the feet of Jesus and the Bible says he started worshiping the Lord. और बाइबल से कहते हैं ये व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था यीशु के चरणों में बैठा, उसके बाद उसने जब छुटकारे को पाया तो परमेश्वर की आराधना करने लगा। Nothing could stop him to come to the feet of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के चरण तले आने के लिए कोई भी चीज रोकने ना पाए। Nothing could stop his worship. उसकी आराधना को किसी बातों ने रोक नहीं पाई। Chained for years together. सालों से बंधुआई में था, दुष्ट आत्मा से पीड़ित था। When Jesus appeared to him, लेकिन जब यीशु उसके सामने प्रकट हुआ, he was able to sit at his feet. और ये व्यक्ति यीशु के चरणों तले बैठ पाया। What is your excuse and my excuse today? आज आपका और मेरा बहाना क्या है? Are you hiding in your self-imposed restriction? क्या आपने जो सीमा बांध के रखा आपके जीवन में उसी सीमा के अंदर ही अब जकड़े हुए हो? And living in an imaginary problem that does not exist in your life? और आप काल्पनिक दुनिया में जी रहे हो जो कि वास्तविक में है ही नहीं। The Lord wants you to come out of it, get it off it. अब प्रभु चाहता है कि उस परिस्थिति से आप बाहर आइए। When Jesus stands to before your situation, जब यीशु आपकी परिस्थिति के बीच में खड़े होते हैं, every demons, every lie spoken by the enemy, हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक झूठी बातें जो शत्रु के द्वारा कही गई है, those addiction, that bondage that has kept you in the same place, जो बुरी आदत है, जो बंधन ने आपको सालों से एक ही जगह पे बांध के रखा है। you may be saying to yourself, you do not know, Pastor, what has happened to me. शायद आप कैसे तो पास हो ना, आप नहीं जानते मेरे जीवन में क्या चल रहा है। I'm addicted with this particular issue. और मैं इस समस्या से जूझ रहा हूँ व्यक्तिगत रीति से। I've been smoking. मैं तो धूम्रपान करता हूँ। I've been drinking. मैं तो शराब पीता हूँ। I've been bound with so many addiction. मैं तो बहुत सारे बुरी आदतों से, लतों से फंसा हूँ। Nobody is able to help me. मुझे कोई मदद नहीं कर सकता। I've been chained in this place for years together. और मैं इसी परिस्थिति में सालों से बंधा हूँ। The Bible says, if one sets you free, you are free indeed. बाइबल कहती है यदि पुत्र ने आपको आजाद कर दिया तो आप आजाद हो। When the anointing of God is there, it breaks every yoke. जब परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में रहता है, वो अभिषेक हर एक जुआ को तोड़ डालता है। Right now, Jesus wants to set you free. अभी यीशु आपको छुटकारा देना चाहता है। But are you willing to accept him? लेकिन क्या आप तैयार हो यीशु को स्वीकार करने के लिए? That you can break free from that bondage. ताकि आप उन सारे बंधनों से आजाद हो जाओ। You know, the truth is this, that you are bound by the enemy and you don't want to get it off it, and you keep giving excuses. बाहर तो ये मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये काम, ये जॉब तो मेरे लिए नहीं है, I cannot do this job. That's the excuse of many young people today. सच्चाई तो ये है कि शत्रु ने आपको बांध के रख दिया है और आप उसी बंधे हुए परिस्थिति में आराम के साथ में, क्योंकि आप आगे बढ़ना नहीं चाहते, बाहर निकलना नहीं चाहते। बहुत सारे जवानों की आज यही समस्या है। Because if you go out, क्योंकि यदि आप बाहर जाओगे, you need to give up all this stuff, क्योंकि आपको इन सारे बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, and you don't want to do it. और आप उसे छोड़ना नहीं चाहते। But God wants you to experience a greater blessing in your life लेकिन प्रभु चाहते कि आप आपके जीवन में बड़ी आशीष को अनुभव करें and live a life of freedom. और आप एक आजादी का जीवन को जिए। Let it be today. और होने दो आजादी आज होने पाए। If 6,000 demons could not stop this man who was hurting himself, 6,000 दुष्ट आत्माओं ने इस व्यक्ति को रोक नहीं पाया जो अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा था। don't give any excuses. आप बहाना मत बनाइए। Stop giving excuses and start living for the Lord. बहाना बनाना बंद कीजिए, प्रभु के लिए जीने के लिए आगे बढ़िए। God wants to set you free. प्रभु आपको छुटकारा देना चाहते हैं। Think of David in the Bible. जब बाइबल में दाऊद के बारे में A सोचें, man who killed the lion and the bear and faced the giant without any fear. जिस व्यक्ति ने सिंह और भालू को लताड़ा और जिसने गोलियात के साथ पंगा लिया, There comes a time in his life. उसके जीवन में एक समय आता है। There were more than 400 debtors. 1 Samuel chapter 22 verse number 5. और पहला सामुएल 22 अध्याय उसका दूसरा वचन में Let's आगे read पढ़ते first 1 Samuel 22 verse number 2. हैं। पहला सामुएल उसका 22वां अध्याय उसका दूसरा वचन जब हम पढ़ते हैं, There were people who were distressed, discontented, people who were having heartbreaks. They all gathered with David.
और जो व्यक्ति निराश थे, जो लोग टूटे हुए थे, वो सारे लोग दाऊद के साथ जुड़ गए। They were people without any hope. उनके जीवन में कोई आशा ही नहीं थी, People who had debts in their life. और लोगों के जीवन में कर्ज। कर्ज था, Distressed people. और थके हुए, हताश हुए लोग। And they got to David. और उनके जीवन में बहुत सारे कर्ज था। They all came to David and they joined with him. वे सारे लोग दाऊद के पास आए, दाऊद से जुड़े। Let me take a break here. When you have the anointing of God, जब आपके जीवन में परमेश्वर का अभिषेक रहता है, when you stop giving और excuses, जब आप बहाना बनाना बंद करते हो, people will identify you. लोग जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहेंगे. This is the same David who killed the lion and the bear and faced Goliath. और ये जो दाऊद था जिसने सिंह और भालू को मारा और साथ ही साथ गोलियात को उसने मारा, He was not giving any excuses. और उसने बहाना नहीं बनाया। Saul was hiding. और साउल राजा छुप रहा था, Own brothers were running away. और उसके खुद के भाई दाऊद के भाग रहे थे उससे, He was ready to face the challenge. लेकिन दाऊद तैयार था उस चुनौती का सामना करने के So लिए। the 400 men came and joined with David. तो 400 जो लोग थे, सूरवीर थे, दाऊद के पास आके उनके साथ संगति करने लगे। I want our church people और हम चाहते हैं हमारे कलीसिया के विश्वासी, to be such a kind of inspiration to people around you. और आपके चारों तरफ जो भी लोग हैं उनके सामने इसी प्रकार से आप लोगों को प्रेरणा दे सके। There are so many broken, hurt, wounded, distressed people around you. हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टूटे हुए, बिखरे हुए हैं, निराश, हताश में हैं। When they look at you, जब वो आपको देखते हैं, they need to look up unto you. और वो आपको देखे और उसके बाद ऊपर देख पाए। Join with people who inspire you, not to tear you down and pull you down. उन लोगों के साथ जुड़े, उन लोगों के साथ संबंध को बनाए रखे जो आपको मजबूत करते हैं, दृढ़ करते हैं। उनके साथ ना जुड़े जो आपके जीवन को फाड़ डालते, नाश कर देते हैं। सब लोग चुपचाप, थोड़ा मैं शुरुआत में बोला था, आपकी मोटिवेशन मेरे लिए जरूरत है। हालेलुया। Don't get along with people who are negative, they are bitter, angry, giving excuses, कुछ नहीं होएगा तो कुछ नहीं कर पाए तो बेकार है। उनसे दूर रहना। आप भी, आपका थोड़ा बचा हुआ जान है ना, जान भी निकल जासे। Get along with people who have killed lion and the bear. आप जो व्यक्ति आपको निराश करते हैं, जो आपको नीचे कर देते हैं, उनके साथ जुड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन उनसे जुड़िए जिन व्यक्ति ने सिंह और भालू के ऊपर विजय को पाया है। Hallelujah. David did not have a throne, दाऊद के पास किसी प्रकार का सिंहासन नहीं था, but he had the anointing of God. लेकिन उसके जीवन में अभिषेक था, He had already faced every big challenges. क्योंकि दाऊद ने पहले अपने जीवन में बड़े बड़े चुनौती का सामना कर चुका He था, was not giving any excuses. और दाऊद ने कोई बहाना नहीं बनाया, And people wanted to join with him. और सारे लोग दाऊद के साथ जुड़ना चाहते थे। Don't tell me you are lonely. आप मत कहिए मैं तो अकेला हूं, Don't tell me मेरे साथ तो कोई नहीं आता है. मत कहिए कि मेरे साथ तो कोई नहीं आता है। If you have the anointing of God, यदि आपके जीवन में अभिषेक है, people will recognize anointing और attracts. आपके जीवन के अभिषेक को देख के लोग जान पाएंगे और लोगों को आपकी ओर There can be hundreds and thousands of people. हो सकता है कि हजारों की तादाद में लोग आसपास, An anointed man walks in. लेकिन जब वहां पे एक अभिषेक दास गुजरता है, When he speaks the words of faith and hope, और जब वो परमेश्वर के विश्वास और आशा की बातों को, वचनों को बोलता है, the distressed people, the discontented people, they all would come and join. और निराश और हताश में पड़े हुए लोग उनके साथ आके जुड़ जाएंगे। And now, और अभी there comes a time for David too. और दाऊद के जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई। If you read the previous chapter, 1 Samuel 21, यदि आप पहला शामिल की किताब उसके 21 अध्याय जब आप पढ़ो, where David was running from place to place. जहाँ पे दाऊद एक जगह से दूसरे जगह अपनी जान बचाते हुए भाग रहा He था, was acting like a madman. और वो पागल व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहा था। He was dripping saliva on his beard, and the king was so upset. और उसके मुंह से जो थूक और लार थे उसके दाढ़ी में बह रहा था, क्योंकि राजा ने ऐसा कहा। Raja was upset हो गया. राजा निराश हो गया, राजा उदास हो गया, Because the king wanted to see a mighty man who killed Goliath. और क्योंकि राजा तो देखना चाहता है कि ये तो सूरवीर व्यक्ति है, और सूरवीर व्यक्ति को सूरवीर का तरह देखना चाहता था। But he was acting like a madman. लेकिन अभी दाऊद एक पागल व्यक्ति के समान व्यवहार कर रहा है। So the king Ahimelech got really upset. तो राजा देख के उसको बहुत ही उदास हो गया, And he says, do you think that we are running short of mad people? You brought this madman also? और राजा ने कहने लगे कि हमारे पास क्या पागलों की कमी थी और एक पागल को लेके आए। And David, 1 Samuel chapter 22 verse number 5, he was hiding in a cave. और पहला सामुएल उसका
उसका उसका 22 उसका 5 जब हम देखें तो ऐसा कहता है कि दाऊद गुफा में छुपा हुआ था, He was hiding. उस गुफा में छुपा हुआ था। Self-made restriction, self-inflicted boundary, और isolation. और उसने अपने आप को लोगों से अपने आप को अलग करके वो एक सीमा बांध के उसी सीमा में वो रहना चाहता था। I don't want to do anything. मैं कुछ नहीं करना चाहता, I just want to hide here मैं इसे यहीं पे छुपा रहना चाहता हूँ, because there is a problem outside. क्योंकि बाहर तो समस्याएं चल रही I हैं, cannot handle it. मैं उस समस्या का समाधान नहीं कर पाऊंगा। Some of you here, आप में से कई लोग, there were times एक समय था आपके जीवन you had में a glorious moment, और आपके जीवन में एक महिमा का समय था, heavenly experience, स्वर्ग का अनुभव था आपके जीवन but में, you cannot live in your past experience anymore. लेकिन आप आपके भूतकाल की उस महिमा की बातों को लेके जिंदगी नहीं जी सकते। आप वर्तमान में 2014, 2015, 2000 or 1998, 1947, I had a celestial experience. Praise God for that. 2014, 2015 या 1947 में मुझको तो बहुत ही अलग प्रकार का अनुभव परमेश्वर को उपस्थित में हुआ था, वो आपको मदद नहीं कर सकता। But how you are today? आज आपकी स्थिति कैसी है? Some of us keep bragging about our past experience. और कई सारे लोग हैं जो बीते दिनों की बातों को सुन के याद करके अपने आप में घमंड करने लगते हैं। When you have a job, when you want to have a job, your experience matter. और जब आपको नौकरी आपको चाहिए तो आपकी नौकरी की जगह में आपका कितना अनुभव मायने रखता है। But when God checks your life, लेकिन जब प्रभु आपके जीवन को परखते हैं, He does not look your past लेकिन experience. प्रभु आपके जीवन की कितना अनुभव उसको नहीं देखते। Hello? वो नहीं देखता। How you are today? लेकिन आज आप कैसे हो? Where are you, David? आज दाऊद अभी तुम कहाँ हो? गुफा में छुपा हुआ है, hiding. अभी दाऊद छुपा है गुफा में, And the Lord sends a prophet, Gath, और वहां पे परमेश्वर ने गाथ भविष्यवक्ता को भेजता है। and says, David, this is not the place where you are. जहाँ भविष्यवक्ता ने कहता कि दाऊद ये जगह नहीं है जहाँ पे प्रभु चाहते हैं तुम यहाँ रहो। Don't stay in the stronghold. तुम इस मांदों में, तुम इस गुफा में मत रहो। Go to the land of Judah. अब यहूदा के इस भूमि में जाओ। We know the word Judah means praise. और हम जानते हैं यहूदा का मतलब स्तुति। Here is a fearful fellow यहाँ पे डरपोक व्यक्ति hiding himself, अपने आप को छुपाए रखा है, afraid of the situation outside. क्योंकि बाहर परिस्थिति खराब है इसलिए डर के मारे अंदर छुपा है। The Lord was saying to David, और परमेश्वर ने दाऊद से कहते हैं, stop hiding, David. दाऊद तू छुपना तू बंद कर दे, Start living, start praise God. और तू आप प्रभु के लिए जीने के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु की स्तुति करने के लिए तैयार हो जाओ। In other words, God wants him to डर डर के मत जीना, खुल के जीना। सही है? Okay. डर डर के मत जीना, बिंदास, मैं तेरे साथ हूं, I am with you. दूसरे शब्दों में परमेश्वर ने दाऊद से कहता था कि दाऊद तू डर डर के मत जी, लेकिन तू खुल के जी। If you want to give excuse, you will always find one excuse. यदि आप हमेशा बहाना बनाना चाहते हो तो आपके लिए हमेशा बहाना रहेगा। But if you want to do something for God, लेकिन आप सचमुच में प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हो, you will always find a way also. और आपको हमेशा एक रास्ता रहेगा। The lazy man says, आलसी व्यक्ति कहता है, I cannot do anything मैं तो नहीं कर सकता, because there is a lion outside. एक बाहर तो सिंह है। It's time to come out of our caves. और ये समय है कि हम अपने गुफाओं से बाहर आ जाएं। If we stay longer in the cave, यदि हम गुफाओं में ज्यादा समय तक रहे, cave will become a grave for us. और वो गुफा हमारे लिए कब्रिस्तान बन जाएगा। सच्चाई बोल रहा हूं, अब उधर ही खुश हो जाओगे। There itself you will become happy, और आप उसी गुफा में आप खुश रहोगे, and you will not come out of it. और आप उस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। What is that imaginary problem you created for yourself, or a lie that the enemy has spoken और over आपने you? किस प्रकार की काल्पनिक दुनिया को आपने बना रखा, उसमें जी रहे हो, या फिर शत्रु ने आपको कौन सी झूठी बातों को बोल के आपको फंसा रखा है, That you cannot do it. जहाँ पे आप सोचते हो मैं तो नहीं कर सकता। We need to believe every word that God has spoken in the Bible. हमें हर एक वचनों को विश्वास करना है जहाँ पे परमेश्वर बाइबल में कहे हैं।
Maybe your parents said negative words about you. हो सकता है कि आपके माता पिता ने नकारात्मक बातों को कहा आपसे, The situation may still be impossible outside, और हो सकता है कि परिस्थिति अब भी गंभीर है बाहर, but that is where the Lord wants us to be a light. और वहीं तो चाहते हैं प्रभु कि हम रोशनी बने, That is where God wants us to make a difference. और वहीं तो चाहते हैं प्रभु कि हम वहां पे जाके एक अंतर को बनाएं, That is where God wants us to shine for Him. और वहीं प्रभु चाहते हैं कि हम वहां पे जाएं और चमके। I firmly believe this is the moment the church, the people of God, the anointed ones to stand up for the Lord and say, Lord, here I am. I'm not going to give an excuse. I'm going to stand up for you, Lord. और मैं ये विश्वास करता हूं कि कलीसिया के लिए और हर एक विश्वासियों के लिए यही समय है जहां पे मैं और आप परमेश्वर से कहने पाए, प्रभु आपका अभिषेक मेरे जीवन में है प्रभु, और आज मैं इसी परिस्थिति में प्रभु आपके लिए मैं सेवा करना चाहता हूं। 2 Samuel chapter 23 verse 20 talks about a shurveer, a mighty man. और दूसरा सामुएल उसका 23 अध्याय उसका 20 वचन जब हम पढ़ते हैं, जहाँ पे एक सूरवीर योद्धा के बारे में बताया गया है, A man by name Benaiah. और जहाँ पे एक बेनयाह करके एक व्यक्ति के बारे में, सूरवीर के बारे में बताया गया The Bible says he went down to a pit on a snowy day. और ऐसा कहता है कि वो उस बर्फीले समय में एक गड्ढे के अंदर गया And he killed a lion. और उसने सिंह को मारा। Normally lion kills people. साधारण तौर पे सिंह लोगों को मार डालता है, But here is a guy, he went behind a lion and killed the lion. लेकिन यहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जो सिंह के पीछे जाके सिंह को मार डाला। Extraordinary person. असाधारण व्यक्ति, Not giving excuses. और उसने बहाना नहीं बनाया। Whatever the problem outside, बाहर की परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, you are called to overcome. और आप उन सारे परिस्थिति से बाहर विजय को पाके निकलने वाले हो। Those issues waiting at your doorstep. और जो परिस्थिति या समस्या है जो आपके दरवाजे पे खड़ी है, Bio beno. Because of shame, और लज्जा की वजह से, because of hurt and pain, और क्योंकि चोट और दर्द की वजह से, because of the lies spoken by the enemy, क्योंकि शत्रु ने झूठी बातों को बोल दिया है, you are not able to get out of your house. तो आप अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। कोई भी कुछ भी पूछने से कोरोना है, वो तो क्या है बोलने के लिए, you know, your heart knows. तो बोलने के लिए आप तो बोल देते, लेकिन आप जानते हो आपके दिल में क्या है, You don't want to do. क्योंकि आप नहीं करना चाहते। That is the truth. वही सच्चाई है ना? You don't want to make any initiative. आप कोई भी कदम आगे नहीं बढ़ाना चाहते। God wants today प्रभु चाहते हैं आज that you come out of it. इन सारे काल्पनिक दुनिया से बाहर आए। काल्पनिक दुनिया, very good. काल्पनिक दुनिया, imagination, आपके काल्पनिक दुनिया से बाहर आए and live for the Lord. और प्रभु के लिए जिए। God wants to use you. प्रभु आपको उपयोग करना चाहते हैं। God wants to give you a breakthrough. प्रभु आपको एक बड़ी जागृति देना चाहते हैं। Let me tell you, let the whole world get into chaos, confusion and plunge into darkness. और होने दे कि पूरे संसार पूरे अंधकार में डूबता चला जा रहा हो। But you are not a pity party, beaten down, without any hope, लेकिन victimized. लेकिन आप ऐसा व्यक्ति ना बने, मारा गया, पीटा गया और तुच्छ व्यक्ति। You and I are called to shine for the Lord. आपको और मुझको इसलिए बुलाया गया है कि आप और मैं परमेश्वर के लिए चमके। Stand up and stand out for the Lord. और खड़े हो जाएं और प्रभु के लिए आगे बढ़े। Where are you? आप कहाँ हो? You are in Babylon. आप बेबीलोन में हो। Who are you? आप कौन हो? You are Daniel. आप दानियल हो। Where are you? आप कहाँ हो? You are in Egypt. आप मिस्र में हो। Who are you? आप कौन हो? You are Joseph. आप यूसुफ हो। Nothing could stop Joseph. यूसुफ को कोई भी परिस्थिति ने रोक नहीं पाई। Pit. गड्ढा। अरे मैं तो गड्ढे में हूं, गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि बाहर मार डालने के लिए मेरे भाई लोग खड़ा है। Joseph will come out. यूसुफ तो बाहर आ गया। And he walks in a place. और वो काम करते गए इसी जगह पे गलत इंतजाम, जहाँ पे गलत आरोप लगाए गए। आरोप, गलत आरोप, wrong accusation. उनके ऊपर गलत इल्जाम लगाए गए। मैं तो अभी काम सब छोड़ दूंगा। Some people are like that. अभी काम ही कुछ नहीं करूंगा, मुझे जरूरत ही नहीं है पास्टर, क्योंकि everybody is blaming me. क्योंकि सारे लोग मुझको ही दोष दे रहे हैं, मैं नहीं करना चाहते काम। I've been doing good. मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। I've been good to everybody. मैं तो सबसे अच्छा व्यवहार करता हूँ। करके क्या फायदा मिला? क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं मिला। Wrong accusation. लेकिन क्या इतना अच्छा करने के बाद मुझे निंदा की बातें सुननी पड़ रही है?
आप मुझे मोटिवेट नहीं करने से मैं कुछ ना कुछ करना पड़ता. Okay. I'll give up everything. मैं सब कुछ छोड़ दूंगा. But Joseph, लेकिन यूसुफ, he believed in the Lord. उसने परमेश्वर में भरोसा रखा. My God has a plan for me. मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ी योजना को रखा है. You blame me wrongly. तुम मुझे गलत इल्जाम लगा दो. You accuse me for the things I never did it. तुम जिन काम को मैंने नहीं किया उसका तुम मुझे सजा दे दो. But my God's plan is bigger than your accusation. लेकिन मेरा परमेश्वर की योजना तेरी निंदा और तेरे दोष से भी बढ़कर है. I hear a good hallelujah. जोर से हालेलुया बोल दीजिए. My God's plans are bigger than all the accusations. मेरा परमेश्वर की योजना मेरे जीवन में तुम्हारे निंदा की बातों से भी बढ़कर है. Not just an accusation. सिर्फ गलत आरोप नहीं. He was put inside the prison. उसको जेल के अंदर भी डाल दिया गया. But the beauty, लेकिन सुंदरता, God was Joseph. लेकिन बाइबल कहती है कि यूसुफ जेल पे रहने के समय प्रभु यूसुफ के साथ था. Hallelujah. आमीन. Every time he faced a problem, जब कभी भी यूसुफ ने समस्या का सामना किया, God was with him. प्रभु उसके साथ था. उसका daddy was not there. उसका पिता उसके साथ नहीं था. Own family members were not उसके with him. परिवार के सदस्य उसके साथ नहीं थे. He was all alone. लेकिन वो सिर्फ अकेला व्यक्ति था. But God was with Joseph. लेकिन प्रभु यूसुफ के साथ था. Where? कहाँ? In the prison. उस जेल में. When God was there, जब प्रभु उसके साथ था, what was not in the palace, it was with Joseph. और जो महल में नहीं था वो यूसुफ के पास था. महल में तो गड़बड़ी. स्वप्न आता है, स्वप्न का अर्थ को राजा को मालूम नहीं है. But here is a guy, slave. लेकिन यहाँ पे एक दास, एक नौकर व्यक्ति, He was living bindas. बंधुआई में आया व्यक्ति आराम से जिंदगी जी रहा था जेल के अंदर. Inside the prison, everybody सलाम मारता है इसको. और जेल के अंदर में सारे लोग उसको है ना सलाम मारते हैं. जेल में बैठ के, अरे बाहर देखो क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है. Even when they asked him why you are inside the prison, यहाँ तक कि जब यूसुफ को पूछा गया कि आप जेल के अंदर क्या कर रहे हो, अंदर बैठ के बगबग नहीं कर रहा है. मालूम है मेरे भाई लोग क्या किया, ऐसे कर दिया. और पोतीफार की पत्नी बुरी है, विच शी इज बैड. बहुत ही गंदी औरत है. नहीं बोला. But he says, I am here for no reason. कहता बिना किसी वजह से मैं इधर हूँ. And the Bible says he remembers the dream. और बाइबल ऐसा कहती है उसने उसके सपना को याद किया. He looks at the dream, उसने अपने सपना जो उसने देखा था उसको याद करता है. not thinking of the pain, hurt and what people have done to him. और उसने ये नहीं सोचा वहां पे बैठ के कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया. My God's promises are bigger than my problem. मेरे परमेश्वर के वायदा मेरे जीवन की समस्याओं से भी बढ़कर है. Hallelujah. हालेलुया. जितने भी परेशान दुख क्लेश आने दो, लेकिन मेरे प्रभु का वाणी, प्रभु की वायदा सबसे बड़ा है, सबसे बेहतर है. मैं बहाना नहीं मारूंगा. बाहर तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है. उस प्रॉब्लम के बीच में मेरे सर को उठाने वाला मेरे प्रभु है. I believe this morning as you are watching us online, विश्वास करते कि आज की सुबह आप हमें ऑनलाइन देख रहे हो. want somebody's faith to be boosted, किसी के विश्वास तो और ज्यादा स्थिर होने पाए. that you will break free from every self-inflicted territory, boundaries. आप अपने खुद के सपनों की दुनिया बना के रह रहे हो, उससे आप बाहर आ सके. Break free and come out of those things. और आप उन सारी बातों से छुटकारा पाके आप बाहर आ सको. When God wants to bless you, जब प्रभु आपको आशीष देना चाहे, no hell can stop you. कोई भी नरक आपको रोक नहीं सकती. There is no plan of the enemy will be able to withstand, because the Bible says no weapon formed against me shall prosper. शत्रु की कोई भी हथियार या योजना आपके जीवन में सफल नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए जो योजना को रखा है उसे कोई हटा नहीं सकता. 2021, 2021, I am coming out of every bondage. मैं सारे बंधनों से बाहर आ रहा हूं. I'm coming out of every fear and मैं caves. सारे गुफाओं से और डर से बाहर आ रहा हूं. I'm coming out of my prison. मैं अपनी जेल से बाहर आ रहा हूं.
There can be famine outside. बाहर अकाल हो सकते हैं, But when Joseph comes out of the prison, लेकिन जब यूसुफ उस जेल से बाहर, बंदीगृह से बाहर आता है, he is not coming out as a prisoner, और अभी वो जेल का बंदी बन के नहीं बाहर निकलता, but he will come out as a prince. लेकिन वो जेल से बाहर जब एक राजकुमार के नाई निकलेगा। Hallelujah. Are you a prisoner or a prince? आप जेल के कैदी हो या फिर आप राजकुमार हो? और कैदी बन के अंदर ही रहना और बाहर आके प्रिंस जैसे जीना, वो आपके हाथ में है। बाहर तो प्रभु बड़ा योजना बना के रखा है। 2021 Stop giving excuses. बहाना बनाना बंद कीजिए। Young people, anything that God asks you to do, जवान, यदि प्रभु आपसे कुछ करने के लिए आपसे कहता है, do it. कीजिए उसे। The best time to do is when God talks to you first. और सबसे उत्तम और सही समय वही है जहां प्रभु आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। व्यक्ति का हृदय में पहले बोलता है ना, उसके लिए हाँ आप बोलते हैं ना, वही द बेस्ट टाइम। और वही जो सबसे अच्छी शुरुआत है आपके नहीं, लिए। उनसे वो मौका आपके हाथों से निकल जाएगा। God will not wait for you. प्रभु आपके लिए इंतजार नहीं करने वाले, He will use somebody else. आप प्रभु किसी और को उपयोग करेंगे। The best time to act is when God talks to you first. और सबसे सही समय वही है कार्य करने का जब प्रभु आपको व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं। Come out of all the excuses. आप आपके जीवन के बहाना से बाहर आइए। Fall at the feet of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाइए। Be free from every addiction. और हर एक बुरी आदतों से आप छुटकारा पाइए। Today, आज bow your head wherever you are. अपने सरों को झुकाएं, आप जहां कहीं भी हो। Stand to your feet. जो भी लोग ऑफलाइन आया है, मैं कृपया विनती करता हूँ, उठ जाइए। जो लोग ऑफलाइन आए हैं, जो कलीसिया में आए हैं, Get जहां up. कहीं भी आप खड़े हो जाएं। I want you to burst forth this morning, worshiping God. हम चाहते हैं कि आप अपने दिल को खोल के प्रभु की आराधना करें। Don't give excuses. बहाना मत बनाइए। Start living for the Lord. अब प्रभु के लिए जीना शुरू कर दीजिए। Hallelujah. Jesus. I want the presence of God to fill your situation right now. हम चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति आपकी परिस्थिति के ऊपर भरने पाए। Maybe you are in an impossible situation. हो सकता है कि आप असंभव परिस्थिति में खड़े हो, Bound, chain, inflicting yourself with pain, hurting yourself. आप बंधे हुए हो, जकड़े हुए हो और आप अपने आप के नुकसान कर रहे हो, अपने आप को चोट दे रहे हो। Feeling as if you are in the midst of lions where people are there to devour you, destroy you. और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप सिंह के बीच में हो, जहां पे सिंह आपको फाड़ खाए। Walking through a fiery furnace. या फिर आप उस आग के, उस धधकती आग के, आप उस आलाप में आप चल रहे हो। The Lord says, when you walk through the water, I'll be with you. ओ प्रभु कहता है, यदि तू जल में से होके भी जा तो मैं तेरे साथ रहूंगा। When you cross the fire, I will stand by your side. यदि तू आग में से होके भी गुजरे तो भी मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। साथ रहने वाला परमेश्वर आपकी सीमा को बढ़ाना चाहता है। आंखों को बंद कीजिए। क्या मेरे लिए 30 सेकंड दे सकता है? Are you ready to give 30 seconds? क्या 30 सेकंड का समय आप दे सकते हो? Get sincerely. ईमानदारी के साथ। I don't believe in entertaining people. मैं मनोरंजन लोगों को करना उस बात पे विश्वास नहीं करता। I'm passionate this morning. If there is one person watching us online, मैं आज की सुबह में जोश से भरा हूं कि यदि एक व्यक्ति भी खड़ा होता है, says प्रभु को जीना चाहता है। Pastor, I've been living for ages as the same person, no change and transformation. यदि कोई आके कहे कि पासवान मैं सालों से एक ही परिस्थिति में पड़ा हूं, उधार तो पाया हूं लेकिन एक ही जगह में पड़ा हूं, कोई परिवर्तन नहीं है। So much of bondage, बहुत सारे बंधने हैं मेरे जीवन में, hurt, broken, wounded. चोट, टूटा हुआ परिस्थिति। I want to get off it. मैं इन सारे परिस्थिति से बाहर आना चाहता हूं। I want to come out of it. मैं इन सारे चीजों से बाहर आना चाहता हूं। I've been giving excuses to the Lord. मैं तो प्रभु को बहाना मार रहा हूं बहुत दिनों से। I've been telling my parents that I cannot do it. मैं तो अपने माँ बाप से कहता हूं मैं नहीं कर सकता। But I believe your word is the truth, Lord. लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपका वचन ही सत्य है। Come on, just worship God. आइए प्रभु की आराधना करें कुछ समय।
Hallelujah. Amen. Oh God, it's your presence that breaks every yoke. प्रभु ये आपकी उपस्थिति हर एक जुआ को तोड़ती है। I pray in Jesus' mighty name, और प्रार्थना करते यीशु के सामर्थी नाम से right now, अब भी, that they will be break free from every bondage. ताकि हर एक बंधन से प्रभु छुटकारा मिलने पाए। Lord, you expose the devil's scheme before our very eyes. ओ प्रभु, आप शत्रु के हर एक योजनाओं को खुल्लम खुला तमाशा बनाइए हमारे सामने। I pray, Lord, for those who've been in the same place for years together, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो एक ही परिस्थिति में सालों से पड़े हुए हैं, without any promotion, किसी प्रकार के पदोन्नति नहीं, without any growth, किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं, without any increment, किसी प्रकार का आय में बढ़ोतरी नहीं, where they have never seen a breakthrough in their life, experience something new. ओ प्रभु, जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु एक बेदारी को अब तक नहीं देख पाया, And they have accepted all the lies of the enemy. और उन्होंने शत्रु की झूठी बातों के ऊपर विश्वास कर दिए That it is impossible. कि ये तो संभव नहीं हो सकता, I cannot be blessed. I cannot get promotion. I cannot see breakthrough. ये तो नहीं हो सकता, मैं तो आशीष नहीं पा सकता, मेरी बढ़ोतरी नहीं हो सकती, मेरी पदोन्नति नहीं हो The सकती, situation in the world is too bad. क्योंकि मेरी परिस्थिति बहुत ही दर्दनीय और गंभीर है। There are so many people losing job. जहाँ पे बहुत सारे लोग नौकरी खो रहे हैं, I cannot see my future. मैं अपना भविष्य साफ नहीं देख रहा हूँ, I will not get an admission. मुझे शायद भर्ती नहीं मिलेगा, And they have accepted a failure in their life. और उन्होंने उस असफलता की बातों के ऊपर विश्वास कर रखा है। Let there be a breakthrough this week, this month, this year, Lord. I और- pray in Jesus' name. और होने दे इस सप्ताह, इस महीने और इस साल उनके जीवन में एक बड़ी छुटकारा होने पाए। You will be the glory and the lifter of their head. ओ प्रभु, आप ही उनके जीवन का महिमा और उनके सिर को ऊंचा करने वाले बने। You would walk through them when they walk through a difficult situation. ओ प्रभु, जब वो कठिन परिस्थिति से होके चले, प्रभु आप उनके साथ साथ चलिए। They will not be afraid of the evil out. ओ प्रभु, बाहर की प्रभु दुष्टता से न डरे, They will face it head on in Jesus' name. बाहर की परिस्थिति का सामना करके प्रभु यीशु आपकी ओर बढ़ते रहने पाए। Oh Lord, we are more than overcomers. ओ प्रभु, हम विजय से भी बढ़कर है। Victory belongs to us, for you have conquered everything on the cross. ओ प्रभु, विजय हमारा है क्योंकि आपने कालवरी क्रूस पे सारे चीजों के ऊपर विजय दिया और विजय को आपने हमें दिया है। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. 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 अभी प्रभु यीशु मसीह का कृपा, परमपिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होते रहे। आमीन। Amen. 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 God bless you.